conversation man kor conclusion ki use of internet chu essential gomut vain. You cannot avoid it. It is part of used in education. It is part used in communication. It is used in messaging. Man chu kaagaz chu, it is a way of paperless working all through tickets, everything. But the children who start indulging in internet right from beginning is very harmful to their brain growth. Brain چھُ abnormal بنان abnormal بالکل تِمن چھِ communication skills different آسان تِمن چھِ social skills different آسان تِمن چھُ speech delay گژھان تِمن چھِ problem solving منٛز مختلف گژھان تِمن چھُ ساروی کھۄتہٕ social interaction گژھان. ڈاکٹر کیسر صٲب چھِ اَسہِ یپٲرۍ کھوٗر کِنۍ تِم چھِ ہر دۄہ کم از کم کۭتیاہ چھِو تُہۍ وٕچھان ییٚتہِ کم از کم 5 اور 10 تام یِم زَن یِمن چیٖزن منٛز مُبتلا چھِ آسان. یہ چھُ اکھ لمحے فِکرِیا وٕنکیٚس سانہِ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ کہِ یۄس یہِ پرابلم چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ اَتھ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ ایڈرس یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ صحیح کٔرِتھ. تَتھ منٛز چھُ سمپل اگرے أسۍ بالکل لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھو. سٲنۍ یِم والدین چھِ یِمن والدینن چھُ آسان پنُن فون تِم ہٮ۪کن پنُن کنٹرول فون کٔرِتھ تِکیازِ تِمن چھُ پتہ ذہنن پتہ کہِ یُس یہِ بچہِ چھُ پٔرٹِکیوٗلرلی 0 to 8 years ییٚمہِ ساتہٕ 18 ؤرین تام ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فون واریاہ جلدی أمِس دِنہٕ آو دٮ۪مٲغی یُس أمِس توازُن چھُ اَتھ منٛز چھِ واریاہ چینج. یہِ بچہِ چھُ زِندٕ لاش آسان تِکیازِ أمِس چھُ آسان أتھۍ فونس کُن نظر. مول موج چھُ آسان دٔچھِنۍ کھووٕرۍ سُہ مول موج چھُ باسان یِمن تِم کھمبہٕ بجلی کھمبہٕ یہِ فون چھُس باسان مول. اَمہِ سۭتۍ چھُ گۄڈٕنیتھٕے أمۍ سٕنٛز ذہنی توازُن خراب گژھان. یہِ چھُنہٕ لٔرنِنٛگ یُس زن أسۍ ہیٚچھو سُہ ہیٚچھِ یہ لرننگ میں پرابلم ہے لرننگ میں جو لرننگ ہے لرننگ جو پرابلمس ہیں اس میں تو پرابلمس لرننگ پرابلمس جو ہوتی ہیں ان کو بچہ سیکھ نہیں پاتا ہے. وہ رائمس سنتا ہے وہ کافی وہ چیزیں بہت کم وقت اس کے ذہن میں رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا جو ان بچوں میں باقی ذہنی پریشانی کے علاوہ ہر ایک جسم کا حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اس کا ازالہ کیسے کریں؟ ایک چھوٹی سی لیول سے ہم اسٹارٹ کریں اپنے پیرنٹس کو. اگر پیرنٹس والدین جو ہیں وہ اپنا فون یوز بالکل کم کریں بالکل لمٹ کریں اور یہ ایک مثال ہوتی ہے. یہ پیرنٹس جو ہیں بچہ ہر وقت اپنے پیرنٹس کو فالو کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو جب وہ ایک لمٹ فون پہ ڈالیں اور کچھ وقت ان بچوں کو دیں تو سوشل انٹریکشن پہلا اس کا ازالہ ہے. ہاؤ وی کین سوشل انٹریکشن میں بچے کے ساتھ آپ بات کر لیجئے, آپ ان کو کہانی سنائیں, ان کی کہانی سنیے اور ان کے ساتھ کھیلیے, جیسے ٹوائز ہیں وغیرہ ان کے ساتھ کھیلیے اور ان کے ساتھ تھوڑا سا واک چلیے. ہر اس چھوٹی سی انٹروینشن سے ہم ایک سوشل جو ایک یونٹ تھا پہلے ماں بچہ اور یہ باپ, یہ ایک سوشل یونٹ تھا. ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں باقی رشتے جیسے ماسی ہے, باقی گرینڈ مدرس ہیں. تو اگر یہ ایوالو ہو جائے, اگر یہ پھر ہم بیک ٹو روٹس, وی ہیو ٹو گو ٹو بیک ٹو روٹس, یہ ایک ازالہ ہو سکتا ہے اس کا. دوسرا ہم یہ کر اسکولس میں جیسے ہے اسکول میں انٹرنیٹ بین اگر ہم کہہ رہے ہیں تو بین کر لیجیے, انٹرنیٹ بین کر لیجیے, لمٹ کر لیجیے صرف اس لرننگ پروسیس جہاں پہ ضروری ہے. وہ ہم ایزیلی لیجسلیشن کی وجہ سے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک. تیسرا, آپ یہ جو وقت آپ کا انٹرنیٹ پہ ہے وہ آپ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں. تو پازیٹیو ایکٹیویٹی آپ کی ایکٹیویٹی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز جیسے سوئمنگ ہے, یہ چیزیں جو فزیکل ایکٹیویٹیز ان میں آپ یہ ٹائم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم آہستہ آہستہ اس سے واپس آ سکتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز سے جو چائلڈہڈ اوبیسٹی ہے وہ کافی کم ہوگی, اور یہ چائلڈہڈ اوبیسٹی از دا کاز آف لیٹر آن ہائپر ٹینشن, اسٹروکس, سنورنگ اینڈ بیہیویئرل ڈسٹربنسز. اور بڑے بہت سی تعداد ہے بچوں کی جو بیمار ہیں اب گیمبلنگ کی وجہ سے,
गेमिंग की वजह से, पोर्नोग्राफी की वजह से, और उनका साइकेट्रिक हमारे कोलीग्स हर दिन कई पेशेंट्स ऐसे देखते हैं, एडोलेसेंट्स who need treatment from them as real hard psychiatry patients. ये बड़े मुश्किल होते हैं चीज़ें. ये वैसी एडिक्शन है जैसे अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज़ की होती है, और ये अब रिकग्नाइज डिजीज़ हैं इंटरनेट यूज़ के कारण. माँ बाप को भी क्या एहतियात बरतना माँ बाप का ही तो सारा रोल बनता है. दे हैव टू गेट इन्वॉल्व इन देयर lives of children again rather than be away from them. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उनको अब पहले अपने आप पर काबू करना है, रैशनिंग करनी है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, और फिर कंट्रोल और कंटेंट देखना है बच्चों के नेट का. और इसमें काफ़ी मैकेनिज़म्स हैं जैसे ये कर सकते हैं. और बिल्कुल सोना परफेक्ट है. चिल्ड्रन शुड स्लीप एनफ. दे नो यूज़ ऑफ मोबाइल 2 to 3 hours बिफोर स्लीप. लॉक करिए उसको, कुछ भी करिए, कुछ करिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर साहब, ये उम्मूमन हमने देखा है कि बच्चा पूरा रैशनिंग, हमने कहा रैश दे हैव टू स्टार्टेड ऑन द स्कूल लेवल कि नहीं जी, आपको हमने काम दिया है, सिलेबस दिया है, इट शुड बी लाइक हमने पढ़ा है कि नोट्स देते थे या किताबों में पढ़ते थे, लेकिन आज टीचर ही मतलब दे आर जस्ट गिविंग द होमवर्क थ्रू द वही चेंज करना स्कूल के वे ऑफ. शुड नॉट बी बैंड ऑन द प्राइमरी लेवल एटलीस्ट. किया है कई कंट्रीज ने Australia, like Australia, तो बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह इसका, बिकॉज अभी इसका नेगेटिव इफेक्ट जो देख रहे हैं ना ऑल ओवर द सोसाइटीज इज ह्यूज. दैट्स व्हाई दिस मीटिंग इज हियर. You can convey the government to ban on the at least primary level. तो यहाँ पर I think Zafar साहब is making a note of it and he will. ना बिल्कुल बिल्कुल. the cream of the society. देखिए, मैं आपको अपना एक नज़रिया इसमें बता लेता हूँ. जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक बच्चे के जहन की नक़ल-ओ-नुमा करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उसको सही माहौल मिलना चाहिए. अब चूँकि माहौल में तब्दीलियाँ पैदा हो गई हैं, आज से पहले जो 50 साल माहौल था वो आज नहीं है. ये तब्दीलियाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हो रही हैं. आज जो यहाँ पर ये मजलिस थी, इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि अगर एक तायराना नज़र डाली जाए, क्या हमारे बच्चों पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इंटरनेट का ख़ास तौर से, और लैपटॉप और मोबाइल्स का इस्तेमाल जो है, इसके कोई मनफी असरात तो नहीं. अब सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, तो डॉक्टर आज़ाद ख़ास तौर से न्यूरोलॉजिस्ट, इम्यूनो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इनके मुताबिक इसके असरात जो हैं बड़े नेगेटिव हैं, और ख़ास तौर से जहन बच्चे का जो है. और बाकी जो डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, उनका ख्याल था कि फ़िज़िकल सेंस पे भी गर्दन में दर्द, आँखों पे ऐनक, या हमारे मुशाहिदे में भी आया, बच्चे अब जो 6-7 साल उम्र के होते हैं वो भी अब ऐनक पहनते हैं. आप जितने भी हैं, आप ही तो उस उम्र में तो नहीं ऐनक पहनते थे. अब उसकी वजह क्या है? वो वजह यही है कि वो जो स्क्रीनिंग टाइम इस बच्चे का ये ज़्यादा है. अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये इंटरनेट है, इसको तो रोक नहीं कोई सकता. स्कूल्स हैं वो भी इनकरेज करते हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए. गवर्नमेंट इनकरेज करते इस्तेमाल कीजिए. आज का जितना सिस्टम है जिसमें पेपरलेस जा रहा है, इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है. लिहाजा हम ये नहीं कह रहे कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन जो इसके मनफी असरात हैं, और ख़ास तौर से इस पर हम बड़ों में भी हैं और बच्चों में भी हैं. हम ख़ास तौर से यहाँ पर बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा वक्त इसी में गुजारते हैं. अब उसकी 2 वजूहत हो सकती. एक, उसको बड़ा आसान लगता है, वो लेज़ी बन जाता है. दूसरा, जो हमारे माँ बाप जो हैं उनमें एक किस्म का रुझान है, बच्चे को वो खेलने से एनकरेज नहीं करते, बल्कि उसको नंबर लाने, बस 100 में से तुमको 98% लाने, 99% लाने हैं. अब वो बच्चा खेलेगा, वो पढ़ेगा, वो क्या करेगा? उसके लिए तो प्रॉब्लम बन जाता है. ये एक पहलू इसका है. दूसरा पहलू इसका है, यकीनन इंटरनेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी है, इसके मेरिट्स बहुत ज़्यादा है. इंफॉर्मेशन गेन करता है, एजुकेशन गेन करता है, दुनिया की पूरी खबर रख सकता है. लेकिन इसको यकीनी कैसे बनाया जाएगा? इसको यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके कंटेंट को कंट्रोल किया जाए, और स्क्रीन टाइम को. मैं स्क्रीन टाइम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंस देता हूँ कि बच्चे को खेलना भी है. आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो खेलने नहीं जा रहा है आज का बच्चा. हमने कई बार पहली मीटिंग में कहा कि उस ज़माने में जब ये था नहीं, तो बच्चे बाहर
बर्फ़ पड़ती हो, कुछ भी हो, स्नोमैन बनाते थे, स्नो बॉल बनाते थे, लेकिन आप जब 30 तारीख को बर्फ़ पड़ी, आपने कितने बच्चे देखे खेलते हुए? कोई नहीं खेलता। तो आप ये समझने लगते हैं कि इन बच्चों को आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखा गया, जब इसको आप ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं बच्चे घर में ही सिर्फ लगे हैं इसके साथ। ये आसान है और ये बहुत अट्रैक्ट करता है। अब इसका जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। कोशिश पर अगर वो मानो कोयल का सर इनको बात ही नहीं आती करनी। बिल्कुल और ये जो इंटरनेट है ये यूनिलैटरल है, ये उधर ही से बोलता है। abnormal गसान कल च गसान बिहेवियर चेंज सर आपको नंबर 2 इसको क्रिएटिविटी पावर ऑफ क्रिएटिविटी जो होता है। मैं अभी इनको बता रहा था, शायद मुझे शक है अब इकबाल और गालिब पैदा हो गए भी कि नहीं, जब इसी पर से। और इसमें खास बात देखिए आप, या आप इंटरनेट आपको उसके अंदर बोलता है आप मत सोचिए, आपके बदले मैं सोचता हूँ। तो ये खुद आपको बताता है कि भाई आपको कोई चीज़ खरीदिए, ये खरीदिए, आपको ये करना तो ये करिए। ये कौन सोचता है? आपके बदले ये मशीन सोचती है, आपको सोचने का मौका ही नहीं है। तो आपकी जहन की नशोनुमा कैसे हो सकती है जो एक इंसान की होनी चाहिए थी? इट हैज़ हाईजैक्ड this system, if not controlled, it has hijacked our intellect and our mind. your diversity, your creativity will As Dr. rightly said, it is a introductory speech. Today, internet is using us rather than I we are using it. it. So this is something very important, a matter of serious concern for schools, for governments, for parents in particular. क्योंकि इसका कंट्रोल जो है स्कूल में तो चलो प्रिंसिपल टीचर कर सकता है कुछ हद तक, अगर कंट्रोल एक्सपोजर वो करे वहाँ पर, या गवर्नमेंट उसको कहती है बच्चों को सिखाओ। लेकिन घर में जो वक्त सर्व करता है वो बच्चा, वहाँ पर सिर्फ उसको पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते। लेकिन पेरेंट्स को खुद भी बदलना होगा कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं बाप देख रहा बराबर 10 घंटे वो इस्तेमाल कर रहा है और वो बच्चा उसको देख रहा उसको कह रहा तो 2 घंटे इस्तेमाल कर। Smooth is not as good someone's example nas pakai khandu span to discuss kama हो जाती है वो एग्जांपल है ना। ये इसमें बड़े एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, और इसकी वजह से कई जगहों पर सुपरफिशियल नॉलेज गेन होती है। अभी इन्होंने बताया था कि इसमें जो नॉलेज देते हैं ना वो एक कंक्लूजन है। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है, तोता होता है ना, तोता भी बोलता है। अगर आप उसको सिखाएंगे 2 + 2 कितना होता, बोलेगा 4, बट डजंट मेक हिम अ मैथमेटिशियन। उसका जवाब तो करेक्ट है। same उसका जवाब उसको तोते को आप पूछेंगे वो भी कहेंगे 2 + 2 4, बट ही डज नॉट बिकम अ मैथमेटिशियन बिकॉज उसको प्रोसेस नहीं पता। तो जहन की नशोनुमा के लिए वो प्रोसेस जो होता है उस नतीजे तक जो पहुंचा, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो शॉर्टकट इसमें जो अवेलेबल हो गया बच्चे, इसलिए ये इन रियल सेंस ये नॉलेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। यू कैन नॉट ग्रो अनलेस यू डोंट एब्जॉर्ब द नॉलेज। यू हैव टू, दिस सुपरफिशियलिटी का वक्त आज नहीं है। और लास्टली एक बात मैं कहूँगा, बच्चों के जो खुद के रुझान हैं हम उसको भी ख़त्म करें। कोई बच्चा मसलन पोइट्री लिखना चाहता है, कुछ स्टोरी लिखना चाहता है, कुछ म्यूज़िक सीखना चाहता है, गार्डनिंग करना चाहता है, ये उसको रोकता है। ये उसका जो टैलेंट नेचुरल है, कुदरती है, उसको एनकरेजमेंट उसमें नहीं मिलती है। तो इस वजह से भी बच्चा लॉपसाइडेड पर्सनैलिटी उसकी हो जाती है। जब वो ग्रो हो जाता है तो वो नहीं रहता जैसा समाज उसको एक्सपेक्ट करता है। तो लिहाजा माई अपील टू द पीपल इज दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न सो फॉर चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स इज कंसर्न। मेरी दूसरी अपील है वालिदैन से कि वो इस पर कुछ वक्त सर्व करें। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाइए। आप अपने बच्चे के साथ बात कीजिए, आप उसके साथ कुछ वक्त गुजारिए और उसे कंट्रोल भी कीजिए इस मोबाइल की बला से उसको दूर रखने के लिए। सो दिस इज़ ऑल व्हाट हम आज इसी नतीजे पर पहुँचे हैं जो हम लोगों तक भी ये बात पहुँचा देंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक है।